Now, dear students, part 2 of nationalism in Europe, the making of nationalism in Europe. In first part, I mainly explained you about French Revolution. And about French Revolution, you already studied in class 9, detail, a different chapter. But here it was just summarized in the form of a topic. French Revolution, the gift of French Revolution is that it was the earliest revolution which gave the ideas of liberalism, fraternity, and all these which are mentioned in our preamble. Many countries, they took these ideas from French Revolution only. Now about this topic, that today, as we know that what are Germany, Italy and Switzerland, यूरोप के अलग अलग जो आज नेशंस हैं, एक्चुअली में ये हिस्टोरिकल टाइम में ये ऐसे नेशंस नहीं थे. हाउ डिड दे कम अप एज नेशंस? दे वर एक्चुअली किंगडम्स. दे वर डिवाइडेड इनटू डचेस, कैंटोन्स, अलग अलग सबके रूलर्स थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, within the territories of which diverse people रहते थे. मीन्स डाइवर्स पीपल मीन्स अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर वाली फीलिंग नहीं थी. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप अपने स्कूल में एक आपकी कॉमन बिलोंगिंगनेस है, एक कलेक्टिव आपकी आइडेंटिटी है. ऐसा यूरोप में उस समय नहीं था. दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग वो एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे. For example, Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary. And Austria and Hungary, just let me show you. In previous pages, we have seen that Austria and Hungary, we are talking about Austria and Hungary as a part of Europe. हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. ये देखिए, Austrian Empire, Austria and Hungary we are talking about. And in the last, I will show you again the map of political map of Europe to make you more clear, to bring more clarity. So Habsburg Empire ruled over Austria and Hungary. It was a patchwork of many different regions and people. Patchwork means अलग अलग parts में, मतलब uniformly divided नहीं था. कोई कहीं, कोई किसी region को belong कर रहा है. And there were different regions and different people were there. It included Alpine region जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आता है, बोहेमिया आता है. सब जगह एरिस्टोक्रेसी थी. एंड इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन प्रोविंसेस, लोम्बार्डे. इनके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डे एंड वेनेटा. हंगरी में half of the population spoke Magyar language, और दूसरा हाफ जो है वो अलग अलग डायलेक्ट्स. व्हाट इज डायलेक्ट? एक्चुअली लैंग्वेज एक सेट होती है, डायलेक्ट उसको बोलने का तरीका होता है. जैसे आप हिंदी है, हिंदी दिल्ली में अलग तरीके से बोली जाती है, यूपी में अलग तरीके से बोली जाती है. इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज. गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी पोलिश लैंग्वेज बोलती थी. Besides three dominant groups, there also lived a mass of subject people. Subject peasant मतलब आम पब्लिक, जो केवल पीजेंट्री ग्रुप थे, आम पब्लिक थे. एंड बोहेमियाज एंड स्लोवाक्स नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेनिया कैरिनोला में, एंड रोमांस टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया. such differences did not easily promote. मतलब इतने differences होने के बाद भी political unity आना कोई बहुत आसान बात नहीं थी. How all these, in spite of the patchwork of nation as Europe was, यूरोप देखिए, प्लीज माइंड में रख लीजिए, यूरोप वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिनेंट. तो वहां पे अलग अलग नेशंस कैसे स्टार्ट हुए? हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन इट इमर्ज? So here comes topic number 1, that is 2.1, aristocracy and the new middle class. Aristocracy means we are talking about the higher class, and new middle class means ordinarily जो middle classes होती हैं, जिसको, जो हम और आप जिस classes को belong करते हैं. Socially and politically, a landed aristocracy was dominant on the continent. Sentence का meaning क्या है? Socially भी ये बहुत dominant थे, politically भी बहुत dominant थे. सारी political power इनके अपने हाथ में थी. Members of this class, they were united by a common way also. मतलब
दिस क्लास मतलब हम अभी एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये सारे टाउन हाउसेस इनके थे, मेनली प्रॉपर्टी इनकी थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि अपने आप को थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस वगैरह अपने शो करने के लिए। एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश प्रिंस मैरिड पुर्तगाल प्रिंसेस। आपस में प्रिंसली स्टेट्स में मैरिजेस होती थी। they crossed the boundary of their territory, but one thing was there कि royal class aristocrat में ही शादी करेगा। This powerful aristocracy was however numerically कम थे, number of people तो ये कम थे पर power सारी इनके हाथ में थी। Majority of the population जो थी वो peasantry थी। और वेस्ट मतलब हम वेस्ट जो बात करें, वेस्ट यूरोप की बात करें, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टेनेंट एंड स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल ओनर्स। टेनेंट फार्मर जो किराए पे जमींदारों के यहाँ काम करते हैं, टेनेंट फार्मर्स उनको कहते हैं। ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग अभी भी वास्ट एस्टेट थी, मतलब बड़ी बड़ी एस्टेट। अगर आप समझ लें जैसे हमारे यहाँ जमींदारों के बड़े बड़े खेत होते हैं, तो लार्ज एस्टेट्स दे वर actually cultivated by serf. Serf वो मजदूर होते हैं, the lowest category of the peasants, which sometimes did not get money also for their wages. So these are called the serfs. Now in western and central part of Europe, the growth of industrial production start हुई, और industrial production start होने के साथ साथ towns भी emerge हुई। देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई, टाउन्स भी इमर्ज हुई। आप देख लीजिए, हमेशा इंडस्ट्री से साथ आपको रेजिडेंशियल एरिया भी मिलेगा, मतलब जरूरी नहीं है इंडस्ट्रीज, लेकिन आसपास, बिल्कुल उसके साथ नहीं। टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century. Second half of the 18th century मतलब मेन स्टूडेंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, वैसे मैंने ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है 1700, मतलब 1750 उसके बाद। But in France, the parts of German, it occurred only in the 19th century, मतलब 1800 में। मतलब फ्रांस में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको सबको पता होगा, आप मिडिल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और ये in central and eastern Europe, these groups they were smaller in number till 19th century, बहुत कम थे ये। It was among the educated and liberal classes. आप देखिए हमेशा इस एजुकेटेड और लिबरल क्लास का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है किसी भी रेवोल्यूशन में, कोई भी सोसाइटी में चेंज आने में। मैं यूरोप की बात नहीं कर रही, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी रेवोल्यूशन उठा के ले लीजिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ हो विदाउट एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस। these लिबरल मिडिल क्लासेस, सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर इसी क्लास को बिलोंग करते थे। आपको याद होगा अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो के बारे में पढ़ा, आपने मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा, आपने, ये लोग ही रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक्चुअली में रेवोल्यूशन में देखिए कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए, एंड मासेस के साथ ये लीड करने वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास थे ये। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेट प्रिविलेजेस, इट गेन popularity. What did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism, ideas of national unity in early 19th century Europe, they were closely allied to the ideology of liberalism. Term liberalism मतलब liberal, एक होता है बहुत कस के पकड़ना, पावर को बिल्कुल अपने कंट्रोल में करना है। लिबरलिज्म मतलब छोड़ देना, धीरे धीरे फ्री करना। फॉर न्यू मिडिल क्लासेस, liberalism stood for freedom from the individual and equality before the law. Freedom for the individual, azadi, with no doubt with restraint, but even then freedom and equality in front of all. मतलब no difference between rich and poor, political equality, social equality, economic equality, इसके बारे में हम डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे। Politically it emphasized the government by consent, कि जो गवर्नमेंट चूज होनी चाहिए वो मर्जी से होनी चाहिए, it should be by consent. Since French Revolution, liberalism stood for the end of aristocracy.
कि लिबरलिज्म जो है वो किस लिए स्टैंड हुआ, फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जरूर होना चाहिए। आज आपको अगर टीचर कह दे कि भी बेटे फर्स्ट यूनिट आएगी, वो आपका मतलब रिवीजन टेस्ट होगा, हिस्ट्री पढ़ के आना, पर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये तो टीचर साथ में बताती है ना आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है कि जो भी रूल कर रहा है ही शुड रूल अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। A representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. जो 19th century के liberals हैं उन्होंने stress किया कि private property नहीं होनी चाहिए। More the private property is there and more the people who are having more property, they will become more autocratic and they will become have the more power in their own hands. Equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. आप देखिए, you will recall that in revolutionary France, first political experiment in liberal democracy हुआ था right to vote. Right to vote to get elected was granted mainly उन लोगों को ग्रांट किया गया था फ्रांस में जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे, जिनके पास वो मैन केवल मैन को मिला था, और वो भी वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड विमेन को एक्सक्लूड किया गया था। लेटर ऑन आफ्टर successive revolutions, men without property were also given the right, but not women. इधर मैं आपको अगेन ये बार बार आपके मेरे जितने भी आगे सक्सेसिव लेसन्स लूंगी किसी भी क्लास के, मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस टू फील प्राउड फॉर आवर ओन कंट्री, and one of the most and the foremost reason is that right to vote for women in France, which is such a progressive country. In France it was given after 200 years, 200 साल बाद मिला था, 1946 में मिला था विमेन को राइट टू वोट, हमारी आजादी से 1 साल पहले। और हमारी कंट्री में आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी, हमारी कंट्री में जब राइट टू वोट पहली बार दिया गया, मेल फीमेल इक्वल, मेल whether rich or poor, female whether rich or poor, they were given equal rights. हमारी इस बात का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सबने मजाक उड़ाया। I'm little bit going out of the topic, but it is very important to tell you time to time that why you should feel proud of your own country. That हमारा बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने मतलब वर्ल्ड में मजाक उड़ाया कि भी इंडिया a country of illiterate is given right to vote to all and that to women. आपको पता है 1951 में जब पहली बार जनरल इलेक्शंस होने जा रहे थे, सुकुमार सिंह was the election commissioner and at that time इलेक्टोरल रोल बनके तैयार हुआ, लेकिन उस इलेक्टोरल रोल में फीमेल के नाम के आगे मिसेस उनका सरनेम, not their first name. The electoral roll was cancelled because the election commission wanted that the female should be known by her own first name. That means to give due dignity to female. Coming back to the point कि पूरे यूरोप में वीमेन को राइट टू वोट एक साथ नहीं दिया था। ब्रीफ आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड जैकोबिन जो हैं उन्होंने जैकोबिन क्लब में डिमांड करी और मेन को विदाउट प्रॉपर्टी भी राइट टू वोट मिला। नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज और फीमेल को राइट टू वोट नहीं दिया। नेपोलियनिक कोड ने भी फीमेल और चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स सेम कैटेगरी पे थे। आप इस राइट टू वोट का मतलब समझ रहे हैं? सऊदी अरेबिया वगैरह में क्या है, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो 2 फीमेल का एक राइट टू वोट, एंड सब्जेक्ट टू फीमेल दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। यही चीज तो आज भी कई गल्फ कंट्रीज में है। थ्रू आउट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, विमेन एंड नॉट प्रॉपर्टीड मेन, मतलब जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, दे ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट, डिमांड किया पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें तो मिल गए, लेकिन आप देखिए फीमेल को फिर भी नहीं मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पैराग्राफ मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ इज टेलिंग अबाउट हाउ इन यूरोप पॉलिटिकल इक्वालिटी केम अप ग्रेजुअली। तो ये पैराग्राफ आप देखिए, मैंने भी साथ में लिखा हुआ है, आप भी अपने पास नोट कर लीजिए। दिस इज अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाउ आई एम गोइंग टू
tell you about the economic. In economic sphere, liberalism stood for freedom of market and the abolition की गवर्नमेंट ने जो restrictions लगा रखी थी वो restriction हट जाए. During 19th century, this was a strong demand of emerging middle classes. Now, German-speaking regions in the first half of the 19th century, Napoleon के administrative measures बहुत अच्छे थे, had created out of countless small principalities, 39 states. हर एक प्रिंसिपैलिटी की अपनी करेंसी, अपना वेट, अपना मेजरमेंट. अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, आई नो दैट लाइव क्लास नहीं है, पर आप पूरे कंट्री में हमारे अगर करेंसी एक ही चलती है, सब्जी और फ्रूट्स किलोग्राम ग्राम में लिए जाते हैं, मेजरमेंट एक ही चलता है, आप इमेजिन करिए यूपी में अलग करेंसी है, पंजाब में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है, तो आप देखिए कि आपको कितना ज्यादा डिफिकल्टी होगी. तो ऐसा यूरोप में था. अमर चैन हु एग्जांपल है ये, ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूबर्ग, उसको अपने गुड्स बेचने के लिए उसको 11 कस्टम बैरियर से जाना पड़ता था और हर जगह 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. 11 कस्टम बैरियर, 5% कस्टम ड्यूटी, मतलब 55%. उसके समान अगर 500 रुपए का है तो आप उसमें 55% और जोड़ लीजिए. कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिए. तो ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड. जो गुड है उसके वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. Each region had its own system of weights and measurement. The measure of cloth, for example, LE, जैसे हमारे यहाँ इंच, सेंटीमीटर, मीटर में होता है, ऐसे LE. और हर एक LE का जो एक मेजरमेंट है, वो लेंथ है, वो डिफरेंट होता था. एंड LE ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल जो फ्रैंकफर्ट में खरीदा गया, उसका मेजरमेंट होगा 54.7, मेंस में 55.1, न्यूबर्ग में 65.6. और आप देखिए कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी इस चीज में. सो सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स. तो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज दैट न्यू कॉमर्शियल क्लासेस ने डिमांड किया, इकोनॉमिक एक्सचेंज आनी चाहिए. न्यू कॉमर्शियल क्लासेस ने डिमांड किया, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए जिससे मूवमेंट ऑफ गुड जो है वो बहुत आराम से फ्लो हो सके. 1834 में कस्टम यूनियन was formed at the initiative of Russia and joined by most German states. यूनियन ने टैरिफ बैरियर मतलब हर जगह, जैसे आप टोल रोड पे नहीं जाते, बट दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज मैंडेटरी. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. अब ऐसे टैरिफ बैरियर हर जगह लगाना उन्होंने एबॉलिश कर दिया. एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2. 30 करेंसीज थी यूरोप की एक, और अब देखिए यूरोप एक करेंसी है जो चलती है यूरोप में. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इसने भी मोबिलिटी बहुत आसान कर दी. मोबिलिटी मीन्स गुड्स का आराम से मूव करना, जैसे रिवर वाटर मूव करता है, लाइक दैट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्नेस करना एंड टू नेशनल यूनिफिकेशन. Wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. So this was all which I explained you about economic equality, economic nationalism. I will try to give the notes to you, but it will take time. But मैं आप कोशिश करूँगी. Now I am moving towards the next topic, that is new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government, they were driven by the spirit of conservatism. What is conservatism? एक वो philosophy जो traditions में believe करती थी, जो इतनी quick change नहीं चाहती थी, जो ये चाहती थी that power should be in the hands of the kings only. Aristocracy, monarchy, church, social hierarchies, इन सब में वो believe करती थी. Most conservatives did not propose कि प्री रेवोल्यूशनरी मतलब नेपोलियन के बाद ये न्यू कंजर्वेटिज्म आया था कि ये चेंज तो चाहते थे पर बहुत जल्दी चेंज नहीं चाहते थे. जैसे आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था, लिबरलिज्म, रेडिकल कंजर्वेटिज्म, ये एक ही बात है, एक ही बात है. देयर इज नो डिफरेंस कि आपने 9 में पढ़ा वो अलग था, नहीं, इट इज वन एंड द सेम थिंग. नाउ मॉडर्न आर्मी, it could make state power more effective. अब देखिए मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy and dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom. These
could strengthen the autocratic monarchy. बहुत important है ये. What were the strength of autocratic monarchy? 3 strength बताई हैं उन्होंने, और वो 3 strength है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? IAS ऑफिसर्स. ये हमारा स्टील फ्रेम है. स्टील फ्रेम है. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमारे कंट्री का, हर एक कंट्री का स्टील फ्रेम है. मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी. ये 3 ऐसे प्रिंसिपल है जिससे एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है. साइड बाय साइड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. 1815 में द यूरोपियन पावर्स, और वो कौन सी थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था, ये वियना में आके मिली, एक सेटलमेंट किया. कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच. मैटरनिच के बारे में अगर आपको ये पता हो, याद हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आया था कि द होल यूरोप कैचेस कोल्ड व्हेन मैटरनिच स्नीजेस. तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उसकी. द डेलीगेट्स ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वियना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी ऑफ वियना, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, with the object of undoing most of the changes. The Bourbon dynasty जिसने डिपोज किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन was restored to power. मतलब फ्रांस में दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया फ्रांस की, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज जो उसने एनेक्स करी थी अंडर नेपोलियन. Series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in north, and Genoa was added to the Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy, but German Confederation of 39 states, they had been set up by Napoleon, untouched थे. They was left untouched. In the east, रशिया जो है, इन द ईस्ट मतलब हम ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं. अभी मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगी, लास्ट में पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगी. इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को पोर्शन ऑफ सैक्सोनी दे दिया गया. ये सब डिसाइड कौन, सब ट्रीटी ऑफ वियना में इन सब सो कॉल्ड 4-5 सुपर पावर्स ने मिलके डिसाइड कर लिया. द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड been overthrown by Napoleon, कि monarchies and जिनको overthrow करा था नेपोलियन ने, and create a new conservative order in Europe. Conservative regime set up in 1815 were autocratic. मतलब autocratic मतलब बिल्कुल अपनी बात चलाने वाले. They did not tolerate criticism and dissent. कोई criticism ऑपोजिशन नहीं टॉलरेट कर सकती थी, एंड सॉट टू कर्ब द एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करे, कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ सकता था. आप ये कार्टून जो देख रहे हैं, इस कार्टून का मतलब है ये सबने मास्क नहीं पहना हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, सबके मुंह बंद है. मतलब nobody has got the power to speak. This is the sentence that they did not tolerate criticism and dissent. Or criticism and dissent is the very much importance of any democratic country. और वो उसको कर्व कर रहे थे. Most of them censorship control. ऐसे censorship laws पास कर दिए कि newspaper, books, plays and songs पे जो liberties के ideas and freedom जो है रिप्रेजेंट करते थे, उनके ऊपर ये सब उन्होंने कंट्रोल कर दिया. नाउ ये देखिए, ये उनका ये कार्टून आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दैट कि हाउ लॉन्ग विल बी टेकिंग. मींस ये देखिए, ये सारे जो हैं दे सेड कि कोई भी क्वेश्चनिंग कोई ना कर सके, इसलिए सबके मुंह बंद है. Nobody is allowed to raise any question on the authority of the autocratic rulers was the main concern of these conservatives. The memory of the French Revolution continued to inspire liberals. अब दोबारा से फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो मेमोरी लिबरल्स को इंस्पायर करने लगी. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new concept was the freedom of press. दोबारा समझा दूं मैं आपको ये लाइन
दोबारा रिवाइव आई कि मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से कैसे लिबरल्स को एक इंस्पिरेशन मिली। मेजर इश्यूज जो लिबरल नेशनलिस्ट ने लिए थे उस समय, who criticized the new conservative order was the freedom of press, कि प्रेस की पूरी आजादी। नाउ 2.4 टॉपिक रेवोल्यूशनरीज, बिल्कुल सेम ऐसा ही रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक अगर आपने इंडिया से रिलेटेड भी पढ़ा होगा। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये क्या थे? दे वर रेवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द फॉलोइंग इयर्स आफ्टर 1815 एक डर आ गया था लोगों में, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि उनको पता था उनके आजादी के ऊपर पूरा बैन लग चुका है। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries। ऐसे ही अगर आपको याद हो, इंडिया में भी रेवोल्यूशनरीज ने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था, अपने वो वेपन्स बनाते थे, सब अंडरग्राउंड बनाते थे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम मीन कि मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करना एंड एक तरीके से अगेंस्ट होना उनके। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब ये सारे रेवोल्यूशनरीज दे सॉ कि नेशन स्टेट्स बनाने का मतलब ये है वो एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की एक स्ट्रगल करना आजादी के लिए। वन सच रेवोल्यूशनरी वाज मैज़नी, a very powerful, a very popular revolutionary was Mazzini. He was born in Genoa in 1807, became a member of the secret society, and as a young man of 24, he was sent in exile. Exile का मतलब होता है देश निकाला कर देना। He subsequently founded two more underground society, Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern। मर्साइल्स फ्रांस में ही, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने मैप में भी करी थी क्लास 9 में। whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, German state, ये सब यूरोपियन कंट्रीज है ये। मैज़नी believed that God ने सभी को, that God had intended nations to be natural units of mankind, कि ये सब natural units हैं। हर इंसान को कुछ अधिकार हैं जो गॉड ने दिए हैं, and these natural units of mankind should be ruled by the natural citizens of any nation। So Italy could not continue to be the patchwork, कि इटली जो है वो अलग अलग, इटली पैचवर्क ऑफ नेशन, इस बात को आगे भी मैं समझाऊंगी जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगे। So Italy could not continue to be the patchwork of small states of kingdom, small states and kingdom। सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक इटली को बनना चाहिए। This unification alone could be the basis of Italian liberty। He talked about Italy। So following this model, सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करी गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। मैज़नी का ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन, इसकी सोच जो थी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव डर गए थे, घबरा गए थे, और मैज़नी को डिक्लेयर कर दिया, उसको देश निकाला दे दिया। मैटरनिच, जिसकी बात मैंने अभी आपसे करी थी, ड्यूक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक पेट्रोनिच described him as the most dangerous enemy of our social order। our social order का मतलब ये है कि monarchical order, aristocratic order, conservative order, इसकी बात कर रहे हैं। तो my dear students, मैटरनिच ने उसको डिस्क्राइब किया कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है। और ये आप देखिए, रेवोल्यूशनरीज जैसे यूरोप में थे ऐसे ही इंडिया में भी थे। नीचे ही मैंने डेट्स दी हुई हैं आपको, जस्ट ये समझाने के लिए दी हैं कि इंडिया की स्टोरी जो थी वो गुलामी की ऑलमोस्ट 200 इयर्स की थी। सबसे पहला इंडिपेंडेंस, हालांकि इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, 1757 में, अगर आपको याद हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। एंड सॉरी, ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 100 साल लगे, और 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये पूरी कहानी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंस की ऑलमोस्ट 200 इयर्स की है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कंक्लूडिंग इट, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप लोग भी वैसे ही चलिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्यू करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। एंड आई विल रियली आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपकी मोटिवेशन मुझे मिलती जाएगी तो बेटे मैं भी आप लोगों को कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूं। एंड एज आई टोल्ड यू दैट एक बार मैं यूरोप का मैप दोबारा से आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। आई एम शेयरिंग इट द मैप ऑफ यूरोप अगेन टू शो यू अबाउट द ईस्टर्न एंड ये देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये मैं आपको मैप शो कर रही हूँ। ये ईस्ट और वेस्ट, इसमें कई बार ये आ चुका है ये, तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न साइड। तो आप ये देखिए, दिस इज, यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें, मैंने आपको बताया था पोलैंड के राइट हैंड साइड में सारी रशिया है, ये ईस्टर्न है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में डेवलपमेंट जल्दी आई थी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में डेवलपमेंट थोड़ा लेट आई थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कंक्लूडिंग इट एंड आई होप दैट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है और प्लीज व्यू करिएगा इसको, अपनी व्यूज भी अपने कमेंट बॉक्स में इसको अपनी कमेंट्स लिखिएगा, एंड सो दैट आई कैन गेट टू नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड आई कैन वर्क अपॉन इट इन माय further videos. Okay students, all the very best to all of you.